اپنے طور پر اسے بھی تیار کر لو اور خود بھی تیار ہو جاؤ۔ میں بہت جلد انتظامات کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے روانہ کر دوں گا۔ اوکے، میں آپ کی ہدایت پر یہ کام سر انجام دے کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ مجھے اس شخص پر حیرت بھی ہوتی تھی۔ کتنی بار اس بات پر غور کر چکا تھا کہ دنیا کا اتنا خطرناک آدمی جسے بڑے بڑے ممالک بھی کانپتے تھے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریز کرتے تھے، در حقیقت وہ اندرونی طور پر اتنا نرم دل انسان ہے۔ ویسے یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوا تھا کہ پلانٹ کے سلسلے میں اسے کوئی ایسا صدمہ نہیں پہنچا تھا جو میرے ہاتھوں پہنچتا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں اس پلانٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے فراہم کروں گا۔ اگر واقعی میرا ریڈ مین سے مسلسل رابطہ قائم رہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فی الوقت میں اسے یہ بتانے سے گریز کرنا چاہتا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اتنا جذباتی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اسے اپنی اصلیت کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میری اصلیت تو در حقیقت 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں بظاہر جو کچھ نظر آتا تھا وہ بھی نہیں تھا، اس کے پیچھے جو نظر آتا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ میری ذات تو ان تمام پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے میں ریڈ مین کے سلسلے میں بہت زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ریڈ مین نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اب میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لوں کہ مجھے ریڈ سٹی سے نکلنا ہے۔ باقی انتظامات وہ خود کیے دیتا ہے۔ ریڈ مین سے رخصت ہو کر میں چلا آیا، لیکن پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ یہاں سے نکلنے کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا جتن کرنے ہوتے۔ بہت سے ایسے مسئلے تھے جو اس وقت پسے پشت جا پڑے تھے۔ جن لوگوں کو میں نے اس کام کے لیے متعین کیا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے جانے میں میری مدد کریں، وہ یقیناً اپنے کام میں مصروف ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میں صحیح سلامت بیروت پہنچ گیا تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ادارے کے سربراہان سے کہہ دوں گا کہ صورتحال ایسی پیش آ گئی تھی کہ میں اس طریقہ کار پر عمل نہیں کر سکتا تھا جس کے تحت مجھے کام کرنا تھا۔ کیرول پاور اگر چکر لگا رہا ہے تو لگاتا رہے، اسے واپس بلا لیا جائے، کیونکہ پروگرام غیر متوقع طور پر تبدیل ہوا ہے۔ میرے اپنے ذہن میں ایک رپورٹ تیار ہو گئی تھی جو میں او ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اسرائیلی حکام کو دینا چاہتا تھا۔ باقی اگر خطرے کی کوئی بات تھی تو خطرات تو میں زندگی بھر مول لیتا ہی رہا تھا۔ نیلس کے لیے میرے دل میں جو جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ بڑی شدت رکھتے تھے، اور اس بات پر میں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا تھا کہ نیلس کو یہاں سے نکالنے کا وعدہ غیر متوقع طور پر پورا ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہوگا، کسی بھی شکل میں اسے یہ دلاسا نہیں دے سکتا تھا کہ میں اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ریڈ مین کے پاس سے سیدھا اپنی رہائش گاہ پہنچا تھا۔ ان انکشافات نے سچ مچ نڈال کر دیا تھا۔ بعض اوقات انسان خوشی سے بھی اتنا ہی نڈال ہو جاتا ہے جتنا تکلیفوں اور پریشانیوں سے۔ میں اس وقت خوشی سے نڈال تھا، اس تصور کے ساتھ کہ واپس جانا نصیب ہو رہا تھا، اور وہ بھی نہایت شاندار طریقے سے، اور پھر نیلس اور اس کے بچے میرے ساتھ ہوں گے۔ بیروت پہنچ کر میں پیڈرو سے رابطہ قائم کروں گا اور اسے مجبور کروں گا جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو سکا کہ وہ نیلس کو اپنا لے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پیڈرو کی زندگی حرام کر دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ بہرطور یہ تھی میری اندرونی سوچ، اور اس کے بعد میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ شام ہو گئی، میں اپنی جگہ سے اٹھا، سوچ رہا تھا کہ نیلس کو یہ خوشخبری کس انداز میں سناؤں۔ ویسے وہ بھی جذباتی عورت تھی، اگر میں اسے فوراً ہی تفصیلات بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے اس پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں۔ اسے اشارہ ضرور دوں گا اس بات کا کہ میں نے اسے یہاں سے نکالنے کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ تمام آسانیاں حاصل ہو گئی ہیں اور اس کا یہاں سے نکلنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ دل میں ایک گدگدی سی ہو رہی تھی، اور میرا رخ نیلس کی رہائش گاہ کی جانب تھا، جہاں اب وہ صرف میرے نام سے جی رہی تھی۔ میں اس کی اس خوبی کا اعتراف تو پہلے ہی کر چکا تھا۔ فطری طور پر وہ بری عورت نہیں تھی، بس بد نصیبی بعض اوقات انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کی کہانی میرے علم میں آ چکی تھی، اور مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عجیب تھی ریڈ مین کی دنیا بھی۔ اس شخص میں بیک وقت خوبیاں بھی تھیں اور خرابیاں بھی، اور ایک جانب وہ ساری دنیا کے لیے ایک خوفناک شخصیت بنا ہوا تھا تو دوسری طرف اس کے دل کے نرم گوشے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ نیلس مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا۔ ہیلو نیلس۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بہت عمدہ کافی پلاؤ مجھے، میں نے آرام سے کرسی پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھنے کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایلسی اور ٹونی آ گئے۔ ہیلو انکل۔ ہیلو۔
मैंने उन दोनों को प्यार से अपने पास बुला कर कहा, अंकल आप कौन हैं? टोनी ने पूछा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, अंकल नहीं, आप कौन हैं? कहा ना अंकल। अंकल तो हैं लेकिन बच्चा अपना मफहूम अदा नहीं कर सका था। एल्सी कहने लगी, अंकल आप हमारे कौन हैं? फिर वही जवाब दूंगा डियर एल्सी के अंकल हूँ तुम्हारा। मम्मी कहती हैं कि अंकल हमारे सरपरस्त हैं। तुम सरपरस्त के मानी जानते हो? मैंने टोनी से पूछा। नहीं अंकल। और तुम? मैं भी नहीं जानती। बस तो ये समझ लो बेटे कि हम इस तरह हैं तुम्हारे लिए जैसे तुम्हारी मम्मी। मम्मी तो हमारी मम्मी हैं, आप अंकल हैं। खैर ठीक है, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं और आपके बारे में हमसे कहती हैं आप हम पर बहुत मेहरबान हैं। अच्छा बच्चों, तुम ये बताओ कि यहाँ जहाँ तुम रहते हो तुम दोनों खुश हो? दोनों सोच में डूब गए। फिर एल्सी ने कहा, नहीं अंकल। क्यों? बस हमारा दिल यहाँ नहीं लगता। इसकी कोई खास वजह है? मैं आपको बता चुकी हूँ अंकल, लोग हमें बुरे बच्चे तस्वुर करते हैं। ये बात एल्सी मुझे पहले बता चुकी थी। वो सब बुरे बच्चे हैं, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। ये आप कहते हैं ना अंकल, वो हमसे दोस्ती भी नहीं करते। कोई बात नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, क्या तुम यहाँ से जाना पसंद करोगे? कहाँ अंकल? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये बताया है कि रेड सिटी के अलावा भी एक दुनिया है? हाँ, क्यों नहीं अंकल, हमें सब कुछ मालूम है। उस दुनिया के बारे में तुम कुछ सोचते हो? हाँ मैं सोचता हूँ, टोनी ने कहा। क्या? मैं मुस्कुरा कर बोला, मैं सोचता हूँ उस दुनिया में जाकर मैं भी बड़ा हो जाऊं और इसके बाद मोटर चलाऊंगा। अंकल मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, मगर मैं बहुत छोटा हूँ ना। और फिर मम्मी कहती है कि हम इन लोगों में से नहीं हैं जो ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास अपनी कारें होती हैं। नहीं बेटे, मम्मी गलत कहती हैं। अभी तुम छोटे हो, बड़े होकर जाहिर है तुम मेहनत करोगे और इसके बाद तुम्हें तमाम चीजें मिल जाएंगी। अंकल मगर रेड सिटी में ये मुमकिन नहीं है, टोनी ने कहा। मासूम बच्चे ने मेरे दिल पर चोट मारी थी। मैंने उसे कहा, तो फिर हमारा वादा है टोनी कि हम तुम्हें रेड सिटी से निकाल कर ले जाएंगे। कब अंकल? बहुत जल्द। इतनी देर में नेल्स वापस आ गई। कहने लगी, इन लोगों ने आपका दिमाग खा लिया होगा, तरह तरह के उल्टे सीधे सवालात करते हैं मुझसे। बहुत प्यारे बच्चे हैं, जाओ तुम खेलो, मैं जरा तुम्हारी मम्मी से कुछ बातें करूंगा। नेल्स मेरे सामने बैठ गई। बच्चे बाहर निकल गए थे। मैंने नेल्स से कहा, नेल्स एक बात बताओ। जी। पेड्रो अगर कभी अब तुम्हें पा जाए तो क्या तुम्हारी जानी मतवज्जे होगा? नेल्स अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने कहा, उसने मुझे पहले ही ठुकरा दिया, अब तो शायद मेरा तस्वुर भी उसके जहन से निकल चुका हो। तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो बैरूत ही में मौजूद है? हो सकता है वहाँ ना हो, लेकिन आखिरी मालूमात मेरी जो हैं वो यही थी कि वो बैरूत की एक फर्म में मुलाजमत करता है। इन मालूमात का जरिया क्या था? जाहिर है कि मैं उसकी खोज में रहा करती थी और जब तक मुझे आसानियां हासिल थी मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करती रही थी। उस फर्म के बारे में भी कुछ मालूम है? हाँ, गालिबन साउथलैंड के नाम से वो फर्म काम करती थी। गुड। क्यों पूछ रहे हैं ये बात मिस्टर मैडलिनो? बस ऐसे ही दिल चाहता है तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊं नेल्स। नेल्स की आंखों पर एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, बहुत सी ऐसी बातों को दिल चाहता है मैडलिनो जिन पर खुद ही हंसने को भी जी चाहता है। मतलब ये है कि इन बातों के ज़ुहूर में आने का कोई इम्कान नहीं होता। मेरा नजरिया इससे मुख्तलिफ है नेल्स। क्या? बाज़ औक़ात वो सब कुछ भी हो जाता है जिसके लिए हम लोग सोचते हैं कि वो कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे खेल तो होते हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसकी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई वाक़या मौजूद हो। अलबत्ता तस्वुरात में और किस्से कहानियों में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। फर्ज करो अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने का बंदोबस्त कर लूँ तो मैं नहीं कह सकती कि मेरी ज़हनी कैफियत क्या होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? कुछ नहीं। दुनिया से इस कदर मायूस हो गई हूँ कि अब किसी ऐसी बात पर दिल नहीं जलता। नेल्स ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। कुछ देर मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा, देखो नेल्स, मैंने कोशिश की है और इस बात की इम्कानात मुझे 40% नजर आते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। 40%? वो हैरानी से मुझे देखने लगी। हाँ, क्यों? ये बहुत ज्यादा है। तस्वुरात में सिर्फ 5% का मार्जिन रखा जा सकता है। वो बोली और हंस पड़ी। मैंने भी उसकी हंसी में उसका साथ दिया। फिर मैंने कहा, तस्वुरात ही का मामला है तो फिर हम उन्हें बढ़ाकर 40% ही क्यों ना कर लें? करने को तो हम 100% भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दुख जरा ज्यादा होता है। हो सकता है नेल्स हम दुखों का शिकार ना हो। खैर, अब इस सिलसिले में मैं क्या कह सकती हूँ? नेल्स ने जवाब दिया और इसके बाद खामोशी तारी हो गई। इससे ज्यादा मैं नेल्स को कुछ बताना नहीं चाहता था। कॉफी पी जाती रही। नेल्स गालिबन किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, मगर तुमने ये 40% वाली बात क्यों कही माय डियर मिस्टर मैडलिनो? मैंने कहा ना नेल्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये तस्वुराती कोशिश नहीं है।
आखिर वो क्या कोशिश है? अव्वल तो यहाँ आने के बाद आम लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। यहाँ से सिर्फ वही बाहर जा सकता है जिसे मिस्टर रेडमैन कहीं अपने काम से भेजना पसंद करें। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टर रेडमैन मुझे अपने किसी काम से यहाँ से बाहर भेज दें। तो फिर आपके बाद हम क्या करेंगे? तुम्हें भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, टोनी और एल्सी के साथ, यानी मिस्टर रेडमैन ही मुझे भेजेंगे। हो सकता है इस बात के इम्कानात पैदा हो जाएं। ऐसी बात ना कहें मिस्टर मैडलिनो, मैं रातों की नींदें खो बैठूंगी। नहीं नेल्स, ये बात नहीं है। देखो, मैं फिर वही अल्फाज कहूंगा कि इंसान को हमेशा बेहतरीन के बारे में सोचते रहना चाहिए, जिस चीज के इम्कानात ही ना हो। खैर छोड़ो इन बातों को। बहरहाल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिले तो अपने साथ क्या क्या ले जाना पसंद करोगी? सिर्फ एल्स और टोनी को, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ बेकार सी चीजें हैं। तो फिर एल्सी और टोनी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो, मैंने कहा, और वो फिर मुझे मुताज्जबाना निगाहों से देखने लगी। फिर उसके अंदाज में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। कहने लगी, क्या वाकई मैं अपने आप को इस उम्मीद से मुंसलिक कर लूं? हाँ, इतने एतमाद से कह रहे हो मिस्टर मैडलिनो? हाँ भाई, इतने ही एतमाद से कह रहा हूँ। ओह काश ऐसा हो सके। बस इससे ज्यादा मैंने नेल से गुफ्तगू नहीं की थी। फिर मैं उसके पास से चला आया। रेडमैन अपने कामों में मसरूफ था। इस दौरान उसने मुझसे 3 बार मुलाकात की और ये कहा कि वो मुझे रवाना करने के लिए तैयार है और कोशिश कर रहा है। उसने मुझे खासी ब्रीफिंग दी थी और मैं जानता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो गलत नहीं है। मैंने उसे नेल्स, टोनी और एल्स के बारे में बता दिया था और रेडमैन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर कहा था, अब तुम अपना काम बेहतर तौर से जानते हो। वैसे मैंने हैनी कैन से राब्ता कर लिया है और उसे तुम्हारे बारे में तफसीलात बता दी हैं। 2 बच्चे और तुम्हारी बीवी, क्या समझे? एक आम आदमी के नाम से जाओगे। मैंने तुम्हें प्रोफेसर हैडले का नाम दिया है। प्रोफेसर हैडले? हाँ, इस नाम से तुम सफर करोगे। पहले मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर से यहाँ से एक ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम हवाई सफर कर सकते हो। तुम्हारे तमाम कागजात वगैरह की तैयारी हो रही है। हाँ, मुझे इन बच्चों और औरत की तस्वीरें वगैरह फराहम कर दो। ये काम मुश्किल तो नहीं होगा तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं। तुम उस औरत को बता चुके हो कि तुम उसे अपने साथ ले जा रहे हो? हाँ। क्या बताया उसे? मैंने कहा है कि मिस्टर रेडमैन मुझे किसी काम से भेज रहे हैं और इसमें मुझे उनकी जरूरत है। क्या वो मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद औरत है? बिल्कुल मिस्टर रेडमैन, आप ये समझिए कि मैंने उसे बहुत गौर खोज के बाद मुंतखब किया है। तुम्हारे इंतखाब पर मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि तुम एक ज़हीन आदमी हो और मैंने इसका बखूबी अंदाजा लगा लिया है। तकदीर मेहरबान थी। सारे काम बखैर खूबी होते जा रहे थे। नेल से इसके बाद मैंने कुछ और नहीं कहा था, लेकिन जब भी मैं उससे मिला मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर सवालात उभरते हों। अलबत्ता बाज़ब्त औरत थी। उसने खुद भी मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। फिर जब मुझे रेडमैन की जानिब से इशारा मिला तो मैं तैयार हो गया और डिपार्टमेंट के वो तमाम अफराद जिन्हें मैं अपने साथ लाया था यही मौजूद थे और मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि ये इसराइली मोसाद के लोग हैं और इनके साथ जो कुछ भी हो वो मुनासिब है। मुझे उनकी जिंदगी या मौत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जानता था मेरे फरार के बाद रेडमैन का ये रवैया बदल जाएगा और वो उन लोगों पर सख्ती करेगा। इसके साथ साथ ही मुझे ये भी अंदाजा था कि आइज़िक मार्सिलिया की जानिब से मुझसे इस बारे में सवालात होंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक मुनासिब कहानी गढ़ी थी और ये कहानी गढ़ना बेहद जरूरी था। गर्ज ये कि जब रेडमैन की जानिब से मुझे इशारा मिल गया कि इस वक्त मुझे कहाँ पहुँचना है तो मैं नेल्स के पास पहुँच गया। नेल्स को पूरी तरह कंट्रोल करना था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हेलो नेल्स, क्या हो रहा है? वही सब कुछ जो होता रहा है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा रहती हूँ आपसे मिस्टर मैडलिनो। अच्छा, शर्मिंदगी वगैरह का मसला बाद में हो जाएगा, जरा अभी घूमने चलना है। कहाँ? क्या इस सवाल का जवाब मेरे लिए जरूरी है? नहीं, सॉरी, माफी चाहती हूँ, उसने कहा और फिर कहने लगी, लिबास तब्दील कर लूं? हाँ, जरूरी है, मैंने जवाब दिया और कहा, बच्चों को भी साथ ले लें, वो कहाँ घूमने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बारहा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आपके साथ निकलूं तो बच्चों को भी साथ ले लूं। कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मैंने उन्हें डांट कर खामोश करा दिया है। बहुत बुरी बात है नेल्स, बच्चों के साथ ये सलूक अच्छा नहीं होता। सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे भी खुश खूबसूरत लिबास में बाहर निकल आए। मैं नेल्स को लेकर इस अंदाज में आगे बढ़ा जैसे सिर्फ तफरीह करने जा रहा हूँ। मुझे इल्म था कि मुझे किस जगह पहुँचना है। वहाँ तमाम इंतजामात पहले से मुकम्मल हो चुके थे। नेल्स ने अलबत्ता मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। रेडमैन मुझसे आखिरी मुलाकात कर चुका था और तमाम हिदायत दे दी गई थी। मेरे तमाम कागजात वगैरह उन लोगों के पास मौजूद थे जो हेलीकॉप्टर के करीब मेरा इंतजार कर रहे थे।
बच्चों ने दूर से हेलीकॉप्टर को देखा और खुश होने लगे। टोनी ने कहा, अंकल आप कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? हाँ, तुम हेलीकॉप्टर में बैठना पसंद करोगे? बच्चे की आंखों में अजीब से तासुरात उभर आए। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। यहाँ 3 अफराद हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। फिर उनमें से एक ने एक ब्रीफकेस मुझे देते हुए कहा, इसमें आप सब के तमाम कागजात मौजूद हैं, क्या मैं उन्हें चेक कर लूं? बेहतर होगा, उस शख्स ने कहा और मैंने ब्रीफकेस खोल लिया। नेल्स, टोनी, एल्सी वगैरह के कागजात भी मौजूद थे। नेल्स का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी और उसका अंदाज कुछ अजीब सा था। मैंने तमाम कागजात से मुतमईन होने के बाद ब्रीफकेस बंद किया और हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ गया। नेल्स, एल्सी और टोनी को भी मैंने अपने साथ आने का इशारा किया। नेल्स के कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने उसे सहारा देकर हेलीकॉप्टर में सवार कराया। टोनी और एल्सी पर भी सहर किसी कैफियत तारी थी। उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर एक लम्हे में मिल जाएगी, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। दरवाजा बंद हो गया और इसके बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर संभाल लिया। गोया पायलट उसके बराबर ही बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर की मशीन स्टार्ट हो गई और कुछ देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होने लगा। नेल्स सकते के आला में थी। टोनी और एल्सी भी बदस्तूर सैरज़दा थे। मैं भी खामोश था। मेरा जहन उस वक्त ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। बाज़ औक़ात तकदीर कैसे अजीब फैसले कर देती है। मैं इतनी आज़ादी से यहाँ से रवाना हो रहा था कि सोचा भी नहीं जा सकता था। बहरहाल अब ये एक अलग मसला था। हेलीकॉप्टर का सफर बहुत देर तक जारी रहा। मुझे जो हिदायत दी गई थी मैं उनसे पूरी तरह वाकफियत रखता था। हेलीकॉप्टर का सफर तकरीबन 1 घंटे के बाद खत्म हो गया और हम एक शानदार आबादी में उतर गए। यहाँ कार मौजूद थी जो हमें लेकर चल पड़ी और कुछ देर के बाद हमें एक इमारत में पहुंचा दिया गया। यहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर फोस्टर से हुई। मिस्टर फोस्टर को मेरे चेहरे पर मेकअप करना था और ये एक मुश्किल मरहला था क्योंकि मेरे चेहरे पर पहले ही से मेकअप मौजूद था। मिस्टर फोस्टर को इस बारे में जरा कुछ कहानी सुनानी थी। काम चूंकि पूरी तेज रफ्तारी से हो रहा था, इसलिए मिस्टर फोस्टर मुझे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे मेकअप पर एक दिलचस्प तजर्बा होगा मिस्टर फोस्टर। मैं समझा नहीं जनाब। आपने बहुत से मेकअप किए होंगे, लेकिन मेकअप पर मेकअप करना एक मुश्किल काम होगा। क्या मतलब? क्या आपके चेहरे पर मेकअप मौजूद है? क्या आपको इस बारे में इत्तला नहीं दी गई? नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। अगर जरूरियात के तहत ऐसा किया गया है तो मैं आपके चेहरे पर अपने फन का मुजाहरा करूंगा। अच्छा ठीक है, मेकअप उतारना जरूरी तो नहीं होगा। मेरा ख्याल है बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक मजबूत और पायदार मेकअप के लिए अगर मेकअप उतार लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं भी इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। ये इंतहाई सनसनीखेज लम्हात थे। अगर इसके बारे में वक्त से पहले रेड मैन को इल्म हो जाएगा तो यकीनी तौर पर वो हैरान होगा और हो सकता है इसके बाद वो अपने प्रोग्रामों में कुछ तब्दीली करे, लेकिन भरतौर खतरात तो मोल लेना ही थे। अलबत्ता मिस्टर फोस्टर ने मेरे मेकअप पर कोई हैरानी का इजहार नहीं किया था, उसकी तारीफ बेशक की थी। फिर मेरे चेहरे पर नया मेकअप कर दिया गया। मिस्टर फोस्टर के अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं थी जो शक का बायस होती। उसने मेरे इस मेकअप को नॉर्मल किया था क्योंकि मामला रेड मैन का था और रेड मैन ने यकीनी तौर पर इसको जो अहकामात भिजवाए थे वो इस कदर मुस्तहकम होंगे कि उसे मेरी जात पर मुकम्मल एतमाद होगा। बस इतना सा ख्याल मुझे जरूर था कि कहीं इसका तज़किरा रेड मैन से ना कर दिया जाए, लेकिन खतरात से बेनियाज जिंदगी बेमजा होती है और अपने बारे में कुछ कहना तो हमाकत ही है। मुझसे ज्यादा अब आप लोग मेरे बारे में जान गए होंगे कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। मुझे खतरात ही से खेल कर जिंदगी का एहसास होता है। खतरात के बगैर गुजारने वाली जिंदगी मेरे लिए हमेशा ही बेमजा रही है। बहरहाल मिस्टर फोस्टर ने मेरा मेकअप मुकम्मल कर लिया और जब मैं नेल्स के सामने पहुंचा तो उसने मुझे अजनबी निगाहों से देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नेल्स ये मैं हूँ। कौन? मिस्टर मैडलिनो? हाँ, लेकिन ये मैंने अपने चेहरे पर मेकअप किया है। मगर क्यों? नेल्स, बैरूनी दुनिया जरा मुख्तलिफ जगह है और फिर मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसी के लिए ये मेकअप मेरे चेहरे पर जरूरी है।